Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I take a chapter from class 12 and the name of the book is India Since Independent. And I take a chapter, the name of this chapter is Parties and the Party System of India. Okay? Class, in this chapter we are going to discuss about what are the different parties in our country, okay, and what are the party systems in our India, like a Congress party, Communist Party of India, Socialist Party, na? Some other party, they have a different ideology on which basis they for contest the election class. So class, first of all we start from after the independence. Class, India was got the independence on 15 August 1947, and after this interim government was set up in our country, and a constituent assembly was also framed for making constitution, and the making of the constitution was completed on 26 November 1949. The Constituent Assembly take the time 2 year 11 month 18 days for making constitution. And class, after making the Indian constitution, now on 24 January 1950 it was signed, and ultimately on 26 January 1950 it was fully implemented in our country, and that is why we celebrated 26 January as a Republic Day class. Class, when India got the independence, India have many challenges, like to shape a nation, to establish a democracy, and the problem of economic developments and social well-being. These are the challenges. So among these three challenges, the second challenge is to establish a democratic country. Okay, कि इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है. दिस वाज अ चैलेंज फॉर अस. तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस and when our constitution was framed, now in our constitution it was clearly mentioned in the article 324 कि there will be a election commission who organize the election in our country. So the first election commission was set up in January 1950, and Sukumar Sen became the first chief election commissioner in our country class. And organizing the election in our country, it was a very difficult task, because India is a illiterate and poor country, and most of the peoples have no idea about what is democracy and how what is the system. And previously universal adult franchisee is totally new for us, कि right to vote is available for everyone, women's, poors, everyone. Rights to vote is available for every section of society. So after the independence and when constitution was ready, so election commission was decided कि universal adult franchisee was granted to all, and election commission was decided to
organize and free and fair election in all over the country class. So, but India is a vast country, and here first time the democratic election was going to be held. So it was a very difficult task. So election commission was they have a many tasks like preparing the electoral list and making deciding the election constituencies in all over the country, and how they arrange the staff. Election commission was trained nearly 3 lakhs employees, and election commission was trained them for the first general election, and first general election take the 6 months duration from October 1951 to January February 1952. So it takes 6 months. The first problem is there is the electoral list, because most of the women give their name as a Fala, she is the wife of, daughter of. So when election commission was going to make the electoral rolls, electoral list, so it was a big problem. That is why election commission was again, election commission not accepted this identity ki wife of, daughter of. So election commission was ordered ki again make the candidate list or electoral list for the women's class. So when electoral rolls was ready, so in the first general election, 17 crore eligible voters were going to be polling station according to electoral roll, and 489 seats are available in the for Lok Sabha election, and nearly 3200 MLAs were also going to elect for state assemblies. And the election of Lok Sabha and state assemblies was organized at the same time with एक साथ दोनों को किया. And there is a problem कि many were saying कि India is a poor country, India is a illiterate country, तो डेमोक्रेसी यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज विथ इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे दे गॉट द इंडिपेंडेंस. जो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ थे, व्हेन दे गॉट द इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने ये देखा कि डेमोक्रेसी उनके लिए, देश के लिए सही नहीं थी, और उनके लिए डेमोक्रेसी उनके देश की जो डाइवर्सिटी है और यूनिटी है उसमें जो है उसको संभाल नहीं सकती थी डाइवर्सिटी को. और उनका ये कहना था कि डेमोक्रेसी की वजह से लोगों में जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो उन्होंने डेमोक्रेसी की जगह नॉमिनल डेमोक्रेसी या एक लीडरशिप, वन मैन के लीडरशिप में सब कुछ कंट्रोल किया, या फिर वो जो है डिक्टेटरशिप साइड्स वो सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, या कहीं पे मिलिट्री रूल भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनका कहना था कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन दियर कंट्री. तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को नहीं अडॉप्ट किया, बट आवर कंट्री वॉज चूजन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. हमने सबसे कठिन रास्ते को चुना, और उन देशों में जहाँ उन्होंने नॉमिनल डेमोक्रेसी या मिलिट्री रूल या वन लीडरशिप के कंट्रोल में सब कुछ रखा, एक बार जब उन्होंने प्रॉमिस किया
तो वापस वो अपने कंट्री में वही सिस्टम को कंटिन्यू करते रह गए, वापस उन्होंने कोई सिस्टम में चेंज नहीं लाया। बट इंडिया वॉज चूजन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पाथ। ठीक है, हमारे लोग गरीब थे, पुअर थे, इलिटरेट थे, बट वी चूजन अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, हमने सबसे कठिन रास्ते को चुना और वी इंट्रोड्यूस द डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया कि ऑन उस समय तक बहुत सारे वेस्ट के कंट्रीज़ अपने यहाँ वुमेंस को राइट टू वोट नहीं दिए थे, बट आवर कंट्री वाज प्रोवाइड द राइट टू वोट फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। तो हमने वी चूजन द टफेस्ट पाथ, हमने इलेक्शन कराया। ठीक है, और जो इलेक्शन था लोग डरे थे कि कहीं पेपर में निकला कि इट इज़ द बिग्स गैम, मतलब हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा बिकॉज पीपल्स वेर इलिटरेट एंड पुअर और हमारी कंट्री के लिए ख़तरा होगा। लेकिन आवर इलेक्शन कमीशन वाज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द इलेक्शन एंड आफ्टर एवरी इलेक्शन इट वाज प्रूव कि हमने उनको गलत साबित किया और हमारे लिए डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश हुई। और बहुत सारी कंट्रीज़ का ये कहना था कि भाई डेमोक्रेसी वाज ओनली फॉर दोज कंट्री विच आर प्रॉस्परस एंड देयर सिटीजन्स आर लिटरेट लाइक USA, UK, where the most of the peoples are literate and educated and prosperous. So democracy is only suited for those countries. And India is a poor and illiterate, so democracy is not suited here. But our जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे चूजन द टफेस्ट पास, उन्होंने तय किया कि नहीं, वी आर टेकिंग द टफेस्ट पास एंड वी चूजन द डेमोक्रेटिक वे टू गॉट द आवर रिप्रेजेंटेटिव। और हमने उस रास्ते को अपनाया और उसका रिजल्ट class in the first general election on each seat there was a 4 candidate and more than 50% voting was held in the first general election class and uh, a landmark in the history of democracy all over the world. This was a slogan कि हमारे इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक लैंडमार्क था क्लास। एंड वी कैन प्रूव दैट कि डेमोक्रेसी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो सकता है और ऐसे पुअर और लिटरेट कंट्री में भी डेमोक्रेसी पॉसिबल है, इलेक्शन पॉसिबल है। हमने ये प्रूव करके दिखाया क्लास when the election was happening, first general election in 1952 and the second general election held in 1957 and the third general election is 1962. So in these 3 general elections from the starting we are looking the Congress was got the dominance. Why? The answer is very clear. The Indian National Congress, Indian National Congress was got the legacy of freedom movements. The Indian National Congress party, it was framed in 1885 and it was set up by the retired British officers A.O. Hume. And many were saying that this party, Congress party, was the established on the colonial master because they want this party and use them as a safety valve against the Britishers. कि Britishers were know कि Indians are unsatisfied and so colonial master provide the leaders a platform where the different advocates, different leaders of our India give their views and
अ प्लेटफॉर्म वेयर दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स, उनकी बातें सामने आएंगी। तो ह्यूम वॉज स्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी विद द टाइम इट वॉज स्ट्रेंथ देयर बेस। जैसे जैसे एक के बाद एक मूवमेंट आते चले गए, लाइक स्वराज मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन मूवमेंट्स के थ्रू जो कांग्रेस का जो ब्रेड है और ब्रॉडन हुआ, उनका जनाधार और बढ़ता चला गया। एंड जो डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के थे वो इससे जुड़ते चले गए, लाइक फार्मर्स जो किसान थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, मिल वर्कर्स, मिल फैक्ट्री का मालिक, सब उसके पार्ट हुआ करते थे। ट्राइबल्स कम्युनिटीज़, जो गांव के लोग थे, सब कहीं ना कहीं से कांग्रेस से जुड़े थे। तो इट वाज अ वेरी ब्रॉड बेस, एंड जो उसका जो जनाधार था बहुत ही मजबूत था। तो बहुत सारी पार्टीज जो है इससे आकर के जुड़ी। सो क्लास the first three general election, the Congress was got the benefit of legacy of freedom movement. When the election was going to be held, these freedom fighters like Pandit Jawaharlal Nehru was and some others were in front of the election campaigning. और जब ये फ्रीडम फाइटर्स लोगों के सामने आए वोट मांगने के लिए, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज प्रॉमिस कि नहीं आपको वोट देंगे। अनफॉर्चुनेटली जो है आप जानते हो कि क्या होना ही है, जब इतने ये सब फ्रीडम फाइटर्स तो आए तो ऑब्वियसली वोट इन्हीं को मिलना है। तो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ लेजेंसी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड दे वॉन द इलेक्शन। और फर्स्ट 3 इलेक्शंस में आप देख रहे हो कि कांग्रेस की डोमिनेंस थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आप देख रहे हो कि कांग्रेस 489 इन द 489 में से आपकी 364 सीटें जो है कांग्रेस ने अकेले जीती। एंड सम अदर पार्टी लाइक सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी वेर आल्सो इन द फ्रंट, मैदान में थी। कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। दो सेकंड देखो क्लास ऐसा नहीं कि जो है कांग्रेस ने इतनी सीटें 364 74% सीटें जीती, लेकिन आप उनके वोट के परसेंट देख लो तो दे गॉट ओनली लेस देन 50% वोट, 45% वोट थे और सीटें उनके पास 74% थी। यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये था कि देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आप जानते हो कि उसके ड्रॉबैक क्या हैं, कि जो कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है 45% ओनली सीटें पाता है, 45% वोट्स केवल गेन करता है, लेकिन सीटों की संख्या उनकी 74% हो जाती है। तो दिस वाज अ ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1952 में हुआ उसमें यू कैन लुक कि कांग्रेस वाज गॉट द बेनिफिट। और कांग्रेस के अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी थी लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सोशलिस्ट पार्टी, तो उन्होंने भी अपनी स्थिति मजबूत रखी। देखो सोशलिस्ट पार्टी वाज गॉन द 10% वोट, बट ओनली दे गॉट ओनली 3% वोट ना। And you know this is the drawback of first past the post system. We already studied in the class 11th and class in the Communist Party. They got 16 seats. Okay, Communist Party of India that came next in the term of seats won only 16 seat. जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के 16 सीटें थी, 16 सीटें थी, ठीक है। और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें थी। तो दिस वाज कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो थी आपकी, सीपीआई को 16 सीटें और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें। तो और इंडिपेंडेंट्स भी बहुत संख्या में थे। तो यू आर लुकिंग कि
रीजन क्या था। जैसे सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले लेकिन सीटें केवल 3%, और कांग्रेस केवल 45% वोट पा करके भी 74 लगभग 74% सीटें गॉट कर ली। तो रीज़न इज़ दैट द फर्स्ट पास ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और कांग्रेस की डोमिनेंस यहाँ इसलिए नज़र आ रही कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट जो वोट थे बिखरे थे, जो कांग्रेस के से अलग अलग कांग्रेस के अगेंस्ट जो पार्टीज लड़ रही थी उनके वोट बिखरे हुए थे और वो कहीं यूनाइट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से जिसका एडवांटेज कांग्रेस को मिला और कांग्रेस जो है डोमिनेंट स्थिति में बनी रही। देखो क्लास जो लोकसभा इलेक्शन थे तो उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी उसके साथ साथ हुए। एंड यू आर लुकिंग कि जब स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें लाइक क्लास केरला में स्टेट असेंबली जो होती है वहाँ की उसने अपना एक कोलिशन बनाया और वहाँ पर केरला में जो है पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार के कोलिशन के थ्रू उन्होंने अपनी सरकार बनाई, ठीक है, सीपीआई ने इन 1957 सेकेंड जनरल इलेक्शन के बाद 1957 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ने कोलिशन के थ्रू गवर्नमेंट बनाई। एंड अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हो तो वहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति है। तो अगर आप केरला और नेशनल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो तो ऑल ओवर द कंट्री जो थी कांग्रेस की डोमिनेंस थी। कांग्रेस की लगभग हर राज्य में स्टेट असेंबली में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीता और हर राज्य की स्टेट असेंबली में उनकी सरकार बनी क्लास। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस वाज इन केरला ना। केरला में कम्युनिस्टों ने पहली बार इलेक्शन जीत करके सरकार बनाई, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देखो कांग्रेस ने लगभग हर 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही थी, ठीक है, और कांग्रेस के पास 45% वोट थे लेकिन सीटों की संख्या 74% थी। तो ये सब जानते हो क्लास कि दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके अलावा कांग्रेस के अगेंस्ट जो नॉन कांग्रेस वोट थे वो डिवाइडेड थे। दैट इज़ वाई कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा क्लास। एंड उसके बाद भी क्लास देख रहे हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है अदर राज्यों में जैसे केरला में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली अपना कंट्रोल अपना डोमिनेंस बना ही लिया ड्यू टू डिफरेंट अलग अलग इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला में भी इस्टेब्लिश कर ली क्लास। एंड उस समय देखो क्लास हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी लाइक सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड यू नो कम्युनिस्ट पार्टी हैव अ so class you are looking the Indian National Congress, which was founded in 1885 by a British retired officer A.O. Hume. Initially this party was established for the objective of as a safety valve for the colonial master. But class, when this organization was made, it provided a platform for our freedom fighters, and with the leadership of Mahatma Gandhi and by every movements like a non-cooperation movement, civil disobedience movement and quit India movement, and these movements provide the broader base to the Indian National Congress. And this party was obviously got the legacy of freedom movement in the first general election, second general election and third general election. That is why the Indian National Congress come as a party, a dominant party, and
That is why in all the first three election win by Indian National Congress with majority.